मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे। So a lot has been said in this particular AV. The context was set by my colleague, Mr. Raghvin Singh, and we are so eager to hear our Honorable Chief Minister to address you. I'll be very brief and crisp in making this presentation. We are the very heart of incredible India, and we are a state of history and heritage. As you can see that we have got more than 800 heritage sites which are under conservation with the state government or the central government agency ASI. We are home to 18 UNESCO World Heritage Sites. I'm sorry for this inadvertent mistake. Our heritage sites are increasing so fast that we are not able to keep pace in the presentation. These are not 14, these are 18 UNESCO World Heritage Sites, which are 1/4 of the total number of World Heritage Sites in the country. We have Gwalior, which is also UNESCO Creative City of Music, being the place of Dhrupad, being the place of all music lovers internationally. Our Bhopal is also being considered for under the category of Creative City of Literature with UNESCO. As you all know that Madhya Pradesh has got many medieval towns which transport you to that era when you go to these places like Mandu, Orcha, Chanderi, Burhanpur, Khajuraho, etc. We have got ancient cities. One of the most ancient city in the country, one is Ujjaini, another is Kashi. We boast of having Ujjaini in Madhya Pradesh, the place of Lord Mahakal, and also the place from where Honorable CM comes. We also had footprints of Lord Rama when he spent most of his exile in Chitrakoot, and he traversed the entire length and breadth of the state while in the exile. So these are a couple of photographs. So when it comes to nature, greenery, we are very blessed to have 1/3 of our area under forest cover. Since the wilderness is so good, we have got throbbing wildlife as well. We have got 12 national parks, 9 tiger reserves, and 3 biosphere reserves in the state, which are highest in the country in any state. We are called tiger state, cheetah state, leopard state, and whatnot. All kinds of big cats are ready there to meet you, to greet you, and to shake hands with you. We are also home to Ma Narmada, which is one of the oldest river on the planet Earth, and because of we are also home to the only hill station of central India, which is Pachmari. As you can see that some of our tiger reserves are world popular, and these are also the places where you get best of the hospitality infrastructure in place, more than 60, 70 or 80, 90 resorts of the best world-class quality. Under the leadership of Honorable CM, recently 2 more tiger reserves have been added. One is Ratapani, which is just adjacent to Bhopal, just 15 kilometers from Bhopal. So if you come to Bhopal, you can go and handshake with the tiger just around the city. Sometimes they come and meet us very often. They find it very homely being in Bhopal. And similarly, another national park is Madhav National Park in the Gwalior region. There are many more which are coming up. This is being done with a very clear intention of decrowding and decentralizing the tourism which is happening, which is growing in the state. When it comes to culture and religion, of course, you all know that we are home to 2 Jyotirlingas. Lord Mahakalji, Lord Omkareshwarji is there to bless us. We are also home to 3 Shaktipeeths, as I said, Chitrakoot, Ujjaini, and also Adi Guru Shankaracharya. It is the place of Guru of Adi Shankaracharya, Omkareshwar, and Honorable CM has recently launched a huge project of more than 2,200 crores to commemorate the contribution of Adi Shankaracharya. Because of him, today Sanatan is what Sanatan is, and country is what country is. So we are there to commemorate his memory by creating an international standard museum on Vedanta and Advaita, and also an international institution there to carry on courses related to Vedanta. So other religions also find place there.
The biggest mosque of Asia is in Bhopal, Tajul Masajid. Bohras find their most sacred place, one of the most sacred places in Burhanpur. So there are a number of series of Jain temples around the state. Sanchi, you all know, is a great Buddhist place, which is also UNESCO World Heritage Site. We are a state full of, festivals. Every nook and corner of the state is celebrating some festival or the other around the year. And we, as a huge state, are divided into 5 cultural zones, distinct zones with distinct culture, distinct language, distinct cuisine, way of living, habitat, everything different. You crisscross the state, move 100 kilometers, you find the new way of living in Madhya Pradesh. There's so much of variety. We are also home to 7 major tribes, and we are blessed to have retained their original flavor and their original culture. We are very consciously preserving all their art forms in the purest way. We are also home to, you all know, ladies here would know especially Chanderi saris, Maheshwari saris, Bak print, which are all world famous. This is our textile handicraft, which is world famous. Similarly, we also are a place where you find Gond, Bhil paintings, Manna paintings, Pithora art, which is recognized world over. So in tourism, we are trying to decentralize tourism and creating 15 new destinations around the state. And we are trying to create more and more infrastructure and amenities around our cultural and religious destinations. If you recall, a couple of, just 2 years ago, Honorable Prime Minister inaugurated Mahakal Lok in Ujjain, and since then it has seen a steep surge in the tourist footfall there. More than 2 lakh devotees, they visit every day Lord Mahakal. In year 2024, more than 7 crores visited Ujjain only. And so is the case with other religious places as well. So all the investors, it should be very interesting for them to know that this cultural rejuvenation which is happening there is also matched by efforts from the government to create right kind of infrastructure in place. Like we said, as an example, Mahakal Lok we have created. We are working in water and cruise tourism areas, creating new tourism products, leveraging the huge water bodies and also River Narmada. From India and Arab countries, Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, wish to call upon Mr. Kapil Suri and Dr. Wael Awad to kindly join us here. And from MPIDC, Mr. Chandramoli Shukla, Managing Director of Madhya Pradesh Industrial Development. That's a great moment, ladies and gentlemen. The history is being created here. A beautiful moment of MOU exchange. Dr. Wael Awad and Mr. Kapil Suri here. For the second MOU, that is from Texmas, Textile Merchants Group, Dubai, wish to call upon Mr. Jagdish Amarnani and Mr. Mahesh Advani. Mr. Chandramoli Shukla. Many congratulations on this beautiful exchange that we are witnessing right now, ladies and gentlemen. Vasu sir is becoming part of the moment. Big hand of applause. Vasuji is one of the founders of Texmas, Textile Merchants Group, Dubai.
So this is Madhya Pradesh, heart of India, हिंदुस्तान का दिल, मध्य प्रदेश. लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, अब वो सुनहरा पल आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था. वो क्षण जब इस मंच से हमें सुनने को मिलेंगे वो दृष्टिकोण, वो विचार जो न सिर्फ मध्य प्रदेश की दिशा तय कर रहे हैं बल्कि उसे एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं. एक ऐसा नेतृत्व जिसकी सोच में है विकास का रफ्तार और जिसकी नीतियों में है जन जन की भलाई का संकल्प. आइए जोरदार तालियों में हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का. भरपूर ताली से जो हमें अपने विषय विचारों के साथ संबोधित करेंगे. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज अमंग अस. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत माननीय सतीश कुमार जी, अभी जिनने हमारे बीच आशीर्वाद भी दिया और मैं डबल रिश्ते से बोल सकता हूं, यहाँ के वरिष्ठ उद्योगपति और हमारे उज्जैन से भी रिश्ता रखने वाले वासु भैया सराफ जी, नरेश भवनानी जी, डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी जी, एसीएस संजय दुबे जी, पीएस शिवशेखर शुक्ला जी, एमपी टूरिज्म का माननीय राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री, इस अवसर पर सुदाम खाड़े जी, इलैयाराजा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी और उससे बड़ी इस सभा को शोभायमान कर रहे स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख उद्यमी हस्तियां, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं. मैं ऐसे अभी बैठे बैठे मोबाइल से दुबई का इतिहास देख रहा था. उस इतिहास में 19वीं शताब्दी से ही देखा, उसके पहले तो बहुत पुराने पे कहाँ जाएंगे. लेकिन मछली पकड़ने वाले छोटा सा एक गांव, उस गांव में 19वीं शताब्दी से इतिहास चालू होता है. बाद में 1950 से आसपास थोड़ा सा विकास का रास्ता आता है. लेकिन जैसा वासु भैया भी बता रहे थे कि 50 से 70 के बीच में तेल की उपलब्धता आई, थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन फिर भी ऊंट, गधे और बाकी की सवारियां आम बात थी. और 80 के बाद से लेकर के बदलते दौर में कहां तेल से दुनिया को बदलने वाला दौर बदलते हुए बगैर तेल से हमारे इस रेती से आपने तेल निकलने की तो बात सुनी कि रेती में कहां तेल निकलता है, लेकिन बगैर रेती के रेती में से नोट निकलते ये पहली बार देखा 80 के बाद. कोई धन की, नीचे की, सोने की खदान नहीं है, लेकिन आसमान से बातें करती हुई बड़ी बड़ी अट्टालिका कहीं दिखाई देती है तो दुबई में दिखाई देती है. ये आज बदलते दौर का, यहां का ये व्यापार व्यवसाय का एक नया तरीका, नया प्रयास है. 1971 के बाद 6 अमीरातों ने मिलकर के यूएई की जो वर्तमान की दशा बदली है, इस बदलती दशा में सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की, विश्व बंधुत्व की भावनाओं को भी अंगीकार करते देखा है. ये बदलते दौर का भारत है जिसमें सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख के साथ जो उदारता का भाव अरब के इस एक तरह से इसको ऐसा ही देखा जा सकता है कि जैसे थोड़ा
हमारे अतीत के काल के उस पृष्ठ को पलट के देखें कि ये भारत की विशेषता थी कि भारत और भारत से जुड़े लोग जहां भी जाते हैं, मैंने कल भी कहा था कि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं और वो अपना घर बना लेते हैं अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए। सुनाम धन्य कैसे कैसे नाम यहां है, और अंदर की उत्कंठा कैसी है, वो उत्कंठा भी वही बता रही जैसे वासु भैया बता रहे हैं कि जब आए तो गधे और ऊंट की सवारी थी और आज कहां बदल गया, ये मेट्रो से लेके बुलेट और क्या क्या सारे यातायात के संसाधन बदलते दिख रहे हैं। तो वो मेरे से कह रहे कि यहां से आप जाओगे तो क्या लेके जाओगे? हमने आपका दिल ले जाएंगे, इतना बढ़िया आदमी मिला कि हमारे लिए आज तक उस प्रेम को बांटने वाला आदमी भी तो मिलेगा। धन दौलत वैभव तो दुनिया में बहुत देखे हैं, लेकिन मन का प्रेम भी तो चाहिए, और ये मन का प्रेम एक दूसरे को संपर्क से जोड़ता है, एक दूसरे के आनंद को बांटता है। दुनिया बहुत छोटी है और ये डिजिटल में तो और छोटी हो गई। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि आदमी तो हिलना डुलना कुछ नहीं करता दिख रहा है। दरवाजे के सारे खिड़की दरवाजे कमरे के सब बंद है और मालूम पड़ा कि करोड़ों रुपए का आवागमन कर रहा है बैठे बैठे, वो हिल भी नहीं रहा है। उसके अपने मन की भाव भंगिमा और हाथ में छोटा सा मोबाइल, सारा हिसाब जमाने का वो अपने मोबाइल से निकाल के कहां से कहां पहुंच रहा है। और अब तो बदलते दौर में मैं याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन हमने देखा कि इस बॉर्डर पे सैनिक भी नहीं अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। बॉर्डर पे सब अपने अपने जगह बैठे हैं। और ये पहली बार देखा कि भारत के अंदर से कहां ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो बॉर्डर के जो पंजाब से पाकिस्तान के लगी हुई बॉर्डर के लोग तो ये कह रहे थे कि कहां युद्ध हुआ। पहले युद्ध होता था तो सैनिक बिल्कुल जो बॉर्डर पे लगे वो सारे घर के लोग दुखी हो जाते थे, और अब उसको छोड़कर कितने किलोमीटर अंदर तक पूरा माहौल बना। लेकिन ये चीज बताती क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी का युग जैसे बताती कि ये आदमी गया नहीं और ड्रोन एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन ये संकेत भी है और ये आनंद भी है। आज के इस दौर को समझने के लिए ये सब कुछ है। इसी प्रकार की व्यवस्था से मैं इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इसको कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है। ये यथार्थ की दुनिया जिससे हमको सबको रूबरू होना पड़ेगा। ये हमारा भारत है और ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है, जिनने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से भी घोषणा की थी, और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तो चलाने की बात कही है, लेकिन उनने पूरे दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया कि हां, आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के कुछ किया है तो हमारी भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने यह दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर अगर आतंकवादी आकर के कोई वारदात करते हैं तो हम उनके घर में जाके भी मार सकते हैं। यह संकल्प दिखाने का समय भी दुनिया के सामने आए। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी युद्ध हो या कोई भी इस तरह की घटना हो, जहां भी घटेगी वहां व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार घटेगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जिसको सरल भाषा में कहें तो वासु भैया उज्जैन तरफ तो ऐसे ही कहते थे, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी में सभी को बोलते हैं कि गुस्सा करना तो आपको दोनों, आप मुंह से हंसते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसने के लिए तो खिलखिलाना पड़ेगा और गाल फुलाने के लिए आंखों में आपको जो दिखाना वो दिखाते रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौर में हमने सब देखा है। 15 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और कितने प्रकार से बदलते दौर में, और उसके बाद 22 का जो दूसरी बार जो उनने समझौता किया है, उस समझौते के बाद दुबई के साथ बराबरी के साथ आपकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 90% कस्टम ड्यूटी फ्री कर देना, यह केवल मोदी जी कर सकते हैं और किसी का कलेजा नहीं हो सकता। ये मोदी जी का आगमन दुबई के माध्यम से दुनिया को संदेश देना है कि कहां एक छोटा सा देश, लेकिन छोटे से देश से
इतना बड़ा रास्ता खोला, जैसे मकान भला कितना ही भव्य क्यों न हो, जाने का दरवाजा तो छोटा ही होता है। वो दरवाजा दुनिया को खोलने का दुबई से तो खोला मोदी जी ने, और कहां से खोला? दुनिया के महल में प्रवेश करने के लिए दुबई, और दुबई से भारत आओ या दुनिया में जाओ, ये जो रास्ता दिखाया है, अब यहां से अफ्रीका तक और दुनिया में कहां कहां तक पहुंचा जा सकता है, दुनिया के सामने उदाहरण बना है। और वो जिनने नहीं खोले वो सब पछता भी रहे कि यार ज्यादा अच्छा है कि दुबई का मॉडल रख लो। दुबई का मॉडल चल रहा है, और ऐसे आधार पर अब आप ही सब बता रहे हो कि क्या क्या और कैसे कैसे चल रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप बात कर रहा हूं तो मैं अपनी योजनाओं को कोई दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरे अधिकारियों ने सब सुना दिया आपको, और आपने सब समझ लिया, मैं मान के चलता हूं। अलग से मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, वो सारी बातें हो गई जितनी होना चाहिए। मजा तो कब आता है, हमने हर एक कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करने गए हूं, सबसे आनंद कब आता है? कब आता जितेंद्र भैया? अरे हाथ में प्रसाद दो तो मजा आता, बाकी तो हो रही है। वो तो सुनाएंगे पंडित जी जो सुनाना है, जो होना सब हो जाएगा। हमारे यहां बड़ा मजा है इसका भी, कभी याद आपको दिलाता हूं। हमारे तीज त्योहार भी मजे दिलाते हैं। कौन बताएगा तीज त्योहार में क्या अंतर है? व्रत और त्योहार में क्या फर्क है? जितने भी व्रत होंगे, अर्थात जैसे आप व्रत को ऐसे समझ लो कि जिस दिन उपवास रहता है, और त्योहार खाने को देता है। तो जितने भी पर्व होते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर्व से समझ लो आप, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब दिन उपवास करना पड़ता है। और जैसे होली दिवाली तो बहुत खाने को मिलता कि ईद पे भी मजे आते हैं, तो खाने को खूब मिले वो त्योहार, बाकी का पर्व इसका मजा है। तो मैं तो त्योहार मनाने आया हूं भाई, ये पर्व मनवा दिया जिनने मनवाना। इन व्यवस्थाओं से जुड़ करके मध्य प्रदेश सरकार के साथ दुबई और हमारे बीच परस्पर जिन बातों की आवश्यकता है वो कोई छिपी हुई नहीं है। सबको मालूम है कि फूड चेन की सप्लाई और फूड इंडस्ट्री के बारे की अगर संबंध दुबई से रखेंगे तो दुबई बदले में क्या देगा? दुबई को जो देना दुबई देगा। अब दुबई ने इतना दे दिया कि अवेयरनेस नहीं रहा, तो दूसरी जगह लगाने की जगह मध्य प्रदेश ही दिख रही है, और कहां ले जाएंगे? दुबई कम पड़ता है क्या? परमात्मा की दया से हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में जहां से चले होंगे, कुछ कुछ जगह की कभी कभी जगह का भी भाग्य रहता है, और जगह पे भी भाग्य से आशीर्वाद मिलता है भगवान का। इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद जिसको दिया, मैं वो दुबई में देखता हूं, मुझे दिखाई देता है। और जहां भगवान आशीर्वाद देता है वहां दूसरे राज्य के लोग भी आना चाहिए ना, कि हो गया यहां आशीर्वाद जितना देना था, इस आशीर्वाद को और फलीभूत करना है। परमात्मा की दया से ये सारे उद्यमशीलता में विशेषता एक रहती कि नोट तो बहुत पड़े बैंक में भी, लेकिन बैंक में पड़े हुए नोट बढ़ने के बजाय घटते हैं। ब्याज जो मिलता है बहुत थोड़ा ही मिलता है, क्यों बसु भैया? लेकिन बाहर जो उद्यमी रहता है वो बैंक की धनराशि को ब्याज से भी लेकर के उसको कई गुना ज्यादा जोड़ के बढ़ा करके बैंक में अच्छा व्यापारी, कुशल व्यापारी बैंक की राशि भी वापस करता है और उससे कई गुना आगे बढ़ा के ले जाता है। आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी राज्यों ने अपने अपने कामों की गति बढ़ाई है, और जैसा समय आया है, कभी हम सोच रहे थे कि कितना अंतर पड़ता था पहले भारत की तरफ देखने का, जब इकोनॉमी की तरफ केवल 14 से लेकर अभी तक देख लो, कहां तुलना तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो। 47 में देश आजाद हुआ, 47 का देश आजाद, उस समय भारत का नंबर 15वां नंबर था उस समय से। दुर्भाग्य से 47 से लेकर 14 के समय तक जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो 11 नंबर की इकोनॉमी थी भारत की, और ये 10 साल में चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। ये समय बदला। जब आप यहां आए थे तब सारे निराशा के बादल छाए हुए थे भारत के ऊपर,
बाकी राज्यों के भी। अब देखो पलट के तो मेट्रो ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी, और बहुत जल्दी अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। ये भारत बदल गया, ये आज का समय। ये टाटा के हमारे माननीय एयरलाइंस के सीईओ बैठे हैं साहब, और मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने ये डंके की चोट कह सकता हूं, अकेले इसी कंपनी ने भारत से इतने सारे विमान का ऑर्डर दे दिया कि वो 10 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। ये भारत बदलता